اور اس دن کو دل سے منائیں، اور دل سے اس طرح منائیں کیونکہ یسوع مسیح کو دنیا کی عام ہستی نہیں تھی جو اس دنیا میں پیدا ہوئی، بہت بڑی ہستی تھی، نہ اس جیسا کوئی دنیا میں پہلے تھا اور نہ ہی کبھی بعد میں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنے جیسا کوئی اور پیدا ہی نہیں ہونے دیا، اس جیسے اور بھی پیدا ہوئے۔ ایک زمانے میں وہ اکلوتا تھا، لیکن آج اگر یسوع کو کہیں گے تو وہ پہلوٹا ہے۔ آج وہ اکلوتے سے آگے نکل چکا ہے، پہلوٹا ہو گیا، اور اس کے پیچھے میں اور آپ بھی ہیں بھائی، خدا کے بیٹے بیٹیاں۔ پہلا بچہ وہ، پہلا پھل وہ، اور اس کے بعد ہم سارے بھی پھل۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ انسان سارا کچھ کر لے، نہا لے، دھو لے، کپڑے پہن لے، سارا کچھ کر لے، پر کھانا نہ کھائے تو کیا فائدہ نہانے دھونے کا؟ ہاللیلویہ۔ تو اسی طرح آج ہم نے بہت ساری تیاری کی تھی، اور اب وقت ہے جس کے لیے ہم نے تیاری کی تھی اس کو حاصل کرنے کا۔ ہاللیلویہ۔ سبھی اپنی بھرپور تالیوں میں خدا کے خادم کو سامنے بلائیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز کرو کون کی تعریف ہو۔ ہاللیلویہ، پریز کرو۔ تھینک یو برادر، خدا آپ کو برکت دے۔ بہت بہت شکریہ تمام آئے ہوئے بہنوں بھائیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے آج کے دن کو بڑا چمکدار رکھا، بڑا صاف ستھرا رکھا، اور آپ کی صحتوں کو اچھا رکھا، اور آپ کے گھروں میں حالات کو اچھا رکھا، تاکہ آپ ٹریول کرتے اور خداوند کے مذبح کے پاس آپ آتے۔ ہاللیلویہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی عزت افزائی کی بات ہے، اور جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ عزت افزائی ہمیں دنیا کی طرف سے نہیں ملتی، یہ ہمارے خداوند بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہاللیلویہ، گاڈ بلیس یو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تعریف ہو خداوند کے نام کی، تعریف ہو خداوند کے نام کی۔ آج کی صبح کے اندر میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے فتح میں نام میں میرے عزیز اسلام قبول ہو، اور خداوند آپ سب کو برکت بخشے، اور ولادت یسوع المسیح سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ مسیح کا اس دنیا میں آنا، پیدا ہونا، اور ہمارے لیے نجات کا بندوبست کرنا بہت بڑی بات ہے، بڑی گریٹنس تھی خدا کی جو ہم پر ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ دنیا قومیں آج اس بات سے اوجھل ہیں، ان کی نظریں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی نجات کے نیچے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے کتنا بڑا خدا سے جو بخشش اور گفٹ ہے وہ حاصل کر لیا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور میں ایک اور بات کہوں گا کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا خوش بھی نظر بھی آنا چاہیے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چہرے پہ اداسی اور دل میں خوشی، تو لگے گا نہیں خوش نہیں ہے، تو آپ خوش ہوں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے لیے خوش ہوں، کیونکہ اب آپ اس جگہ پر آ چکے ہیں جہاں پر آپ کو خداوند کے کلام سے خوشی اور برکت میسر آنے والی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج میرے عزیزو، ہم دیر کے بغیر خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ چند لمحے ہم خداوند کے کلام اقدس میں سے دیکھیں گے، اور آپ کو تھوڑی دیر اور کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ پاک کلام میں جب بادشاہوں کا بادشاہ آتا ہے، خداوندوں کا خداوند آتا ہے، اور ہماری جانوں کا لنگر آتا ہے، تو ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیدھے ہو کر سنجیدگی سے اس کا کلام سنیں، اور دھیان اور گیان لگا کر اس کی بات پر دھیان دیں کہ آج وہ کہنے کیا والا ہے ہم سے۔ آمین۔ تو نکالیے گا میرے ساتھ خداوند کے کلام اقدس میں سے حوالہ ایک ہم پڑھیں گے، کانٹیکسٹ پڑھیں گے بلکہ، اور اس کانٹیکسٹ کے زیر اثر پھر ہم آگے چلتے ہوئے کلام کی باقی چیزوں کو جانیں گے، سمجھیں گے، اور برکت کو حاصل کریں گے۔ نکالیے گا میرے ساتھ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے لے کے 35ویں آیت تک۔ کوئی بلند آواز میں اسے تلاوت کریں پلیز جی۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ہاں جی، ایک کماری کے پاس بھیجا گیا، ہاں جی، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، جی پڑھتے جائیں۔ اور اس کماری کا نام مریم تھا۔ جی، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، ہاں جی، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، سلام اے مریم تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ جی، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی، ہاں جی، اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ یہ کیسا سلام ہے؟ فرشتہ نے اس سے کہا، ہاں جی، اے مریم خوف نہ کر، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، خدا کی طرف سے اے مریم تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، تو حاملہ ہوگی، اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تیرے بیٹا ہوگا، دھیان لگائیں، اس کا نام یسوع رکھنا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا، وہ بزرگ ہوگا، اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلا کے پڑھتے جائیں، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اس کے باپ داؤد کا تخت خداوند اسے دے گا،
और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और वो बादशाही करेगा किन पर? यकूब के घराने पर। जी और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। जी पढ़ते जाएं। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, हाँ जी, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो जाएगा ये हो नहीं सकता, कैसे होगा? जी जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। जी फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा जी कि रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। दिस इज द रीजन, इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का कहलाएगा। 35 तक होगी। आमीन। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। और बैठिएगा, एक हवाला हम बैठ के पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस कलाम के बायस आपकी जिंदगी में से हर तरह की मुसीबत दूर हो जाए और उसकी जगह खुशी ले ले, खुदावंद के कलाम की खुशी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। किताब यूहन्ना के अंदर हम जाएंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील निकालिएगा। चैप्टर 1 पहला बाब 11, 12 और 13। जी पढ़िए। वो अपने घर आया। वो अपने घर आया। कौन अपने घर आया? खुदावंद यीशु मसीह अपने घर आया। पढ़िए। और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, यानी उनको जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, अब ये आपने ध्यान से जरा सुनिए बात, ये वाली बात जो अभी होने लगी। जिस्म की ख्वाहिश से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। बल्कि खुदा से पैदा हुए। वो बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आज का हमारा मौजू है, चलते मैं मौजू सबसे पहले आपको बता दूं, और मौजू है आज हमारा मौलूद मुकद्दस। क्या है मौजू हमारा? हाँ जी, अंग्रेजी में अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो इसको लिखा गया है द बीइंग बर्न होली वन, द बीइंग बर्न होली वन, मौलूद मुकद्दस। आमीन। वो जो मुकद्दस तरीके से पैदा हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, थोड़ा सा टाइम लेंगे, आप ध्यान लगाएंगे तो आज की मीटिंग, आज की इबादत जो है वो आज का ये जो कलाम है खुदावंद की तरफ से जो आया है, ये आपकी जिंदगी पर असर जरूर करेगा। आमीन। क्योंकि पाक कलाम में एक बड़ा प्यारा वादा है, उसने कहा खुदावंद का कलाम आता है और बेतासीर फिर वापस लौटता नहीं है। वो तासीर करता जरूर है, क्योंकि अगर वो तासीर ना करे तो कैसे पता चलेगा खुदा का कलाम तासीर वाला है, असर वाला है। वो असरदार है, करता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कभी कभार, कुछ अशिया, कुछ जगह, कुछ लोग, कुछ जमीनें उसके असर को लेना नहीं चाहती। आमीन। हालेलुया। आप जानते हैं खुदा ने जब शागिर्दों को दो करके भेजा तो उसने कहा जो कोई तुम्हें कबूल करे मेरे नाम से और जो तुम्हें खाने को दे, है ना, जो कुछ दे वो ले लेना, लेकिन जो तुम्हें ना कबूल करे तो उनके दरवाजों के सामने बाहर अपने पांव की गर्द क्या कर देना, झाड़ देना। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी कबूलियत का वक्त नहीं होता और कभी कभी कबूल करने वालों का जहन नहीं होता। आमीन। लेकिन जिनका जहन नहीं होता उनके लिए बड़ा खतरनाक मामला है। तो मौलूद मुकद्दस, आमीन, बीइंग बर्न होली वन, आमीन। कोई भी ऐसा शख्स जो पैदा हुआ है एक मुकद्दस तरीके से। अब यहां पर खुदा यीशु मसीह है और एक वाक्य है, और कुंवारी है, दोशीजा है, स्पिंसर है, आमीन। एक मंगनी शुदा औरत है जिसकी मंगनी किससे हो गई है? यूसुफ के साथ, मुकद्दस यूसुफ के साथ। हालेलुया। और ये दोनों ही बैतलहम में रहते नहीं हैं, ये रहते किधर हैं? नासरत में। ये अपने इलाके से दूर हैं, हालांकि ये एक रास्ताबाज है और दूसरी रूल कुदस याफ्ता है, लेकिन अपने पॉइंट पे नहीं है। सॉरी, इन बातों का जरा रेवलेशन समझ लीजिएगा, मैं रेवलेशन के तहत बात कर रहा हूं, आमीन, मुकाशफा के तौर पर। बाइबल मुकद्दस में जो कुछ लिखा है उसके पीछे एक रेवलेशन है। अब क्या है ये भाई कि ये दोनों जो आज नामचीन, नामी ग्रामी और सेंट लेवल के, जिनको खुदा ने मुकद्दसीन कहा है, ये दोनों यूसुफ, मुकद्दस यूसुफ भी और मुकद्दस मरियम भी, दोनों अपने इबाई इलाका में जहां पर ये पैदा हुए, जहां पर ये पले बढ़े, उस इलाके को छोड़ चुके हुए थे। तो ये कहां पर रह रहे थे? किसी और जगह, किसी और जगह पे। और आपको पता होगा आगे चल के लोगों ने कहा भी था, नासरत से कोई अच्छी चीज, मतलब समझ गए ना? आमीन। लेकिन खुदावंद ने यह मुमकिन जाना कि जब वक्त पूरा हो जाए, नविश्तों के मुताबिक, पुराने खुदावंद के नबियों के मुताबिक जो उन्होंने कहा था कि एक जमाने में कुंवारी क्या हो जाएगी, हामला होगी और वो एक बेटे को पैदा करेगी और उसका नाम क्या रखेगी? इमैनुएल रखेगी।
हालेलुया। ये जमाना ऐसा है कि द स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट, जिसे कहते हैं परख का रूह उतर चुका हुआ है। आमीन। और परख के रूह के बगैर आपके पास सारी रूहें हैं, कोई काम नहीं करेंगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको जब तक आपको परख नहीं। और परख का मतलब है आप गहरे में जाएं और क्या करें, पहचान करें कि बात जो हो रही है उसका मतलब क्या है। तो हम वहीं पे चलेंगे। वो अपने इलाके से दूर थे और नविश्तों में लिखा गया कि एक वक्त आएगा, एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा पैदा करेगी। बेटे को पैदा करने के लिए जो जगह उन्होंने छोड़ी थी वहीं पर उन्हें जाना पड़ा। समझे बातों को, क्यों वहां पे जाना पड़ा, वहीं पे वलादत क्यों नहीं करवा दी गई। आमीन। और फिर अगर कह भी दिया कि वहां पर जाकर आप कराएं, मैं एक बात आपको थोड़ा सा बताता चलता हूं इसमें वाकया में एक चीज को समझने के लिए कि वो जमाना ऐसा था कि कोई एम्बुलेंस नहीं थी, किसी तरह का कोई फैसिलिटेशन नहीं थी, कोई सहूलत नहीं थी। और फिर ये दोनों बड़े गरीब से लगते हैं यार, गधे पे बैठा के लेके जा, है ना। और मुकद्दस मरियम भी कोई अमीर औरत थोड़ी थी, गरीब ही थे और खासे गरीब थे। आमीन। और आपको पता है जो गधे पे सवारी करते हैं वो हचकोले हचकोले हचकोले, है ना। और एक प्रेग्नेंट औरत किस हालत में चल रही हो, गॉट इट, समझ रहे हो ना मेरी गाल में। और गाल अंजी है ना, ट्रैवल किया उन्होंने, तो वो चल रहे हैं और जा रहे हैं अपने इलाके की तरफ, है ना। कितना फासला होगा, कितना ट्रैवल किया होगा उन्होंने, कोई सहूलत नहीं, कोई कुछ नहीं। खुदा ना खास्ता रास्ते में वजह अमल हो जाता, क्या करते हुए यार, है ना। वो मैं नहीं समझता इतने ज्यादा को उनके पास पैसे भी होंगे। आमीन। लेकिन खुदावन ने एक इसमें नवीसी का इनकाद कर दिया। खुदावन ने सेंसस, इसे सेंसस कहते हैं, मर्दमशुमारी का इनकाद कर दिया। आमीन। रजिस्टर नाम जो है वो रजिस्टर करवाने आपने, वर्ल्ड काउंटी होने शुरू हो गए। ये वर्ल्ड काउंटी भी एक रेवोल्यूशन रखती है। वहां पर कैसर औगुस्तस जो है खुदा की तमसील है, जो मजबूर कर रहा है पूरी दुनिया के लोगों को कि वो अपने 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 आबाई, वहां पर देखिए आबाई में, आमीन आमीन, जहां पर उनके आबाओ अजदाद थे और वहां पर वो पैदा हुए थे, है ना, पिंड अपने पिंडा च उत्थे जाके ना लिखाओ। क्या है इसके पीछे बात, बहुत बड़ी बात है। टॉपिक मत भूलिएगा, मौलूद मुकद्दस। हालेलुया। ये टॉपिक ना सिर्फ यीशु से ताल्लुक रखता है, दर हकीकत ये मुझसे और आपसे भी ताल्लुक है। अगर यीशु मौलूद मुकद्दस है तो हम कौन से मुकद्दस हैं, क्यों जी। चलें, इसके चलते में बाद में बात होगी, लेकिन इसको लेकर चलते हैं पहले। तो वो अपने आबाई गांव में गए और वो आबाई गांव जो इनका था, जहां पर इनकी पैदाइश हुई थी, उसका नाम क्या था, कौन बताएगा। बैतलहम। बैतलहम का मतलब क्या है, रोटी का घर। और रोटी के घर में एक रोटी का घर पैदा होने वाला। रोटी के घर में द हाउस ऑफ लिविंग ब्रेड, जिसे कहते हैं जिंदगी की रोटी का घर पैदा होने वाला था। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये मेरे और आपके निजात इंदा की बात है मेरे यीशु, ये किसी आम हस्ती की बात नहीं हो रही। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब बड़े हो गए तो आगे चल के एक बहुत बड़ा दावा किया। उसने फकीह फरीसियों आलम दीन से कहा, ये मैं वो रोटी नहीं भाई कि जो तुम्हारे बाप दादा जो बियाबान में खाया करते थे उन पर उतरी, मैं वो वाला मन नहीं हूं। आमीन आमीन। क्योंकि उस मन में तो कहीं ना कहीं जाकर कीड़े भी पड़ जाते थे, वो बास मारता था। लेकिन मैं वो मन हूं, वो रोटी हूं, एज कंपेयर दैट मन्ना। उसी मन्ना के मुतरादिफ अगर मुझे खड़ा करते हैं तो मुझ में से जो खाएगा अबद तक कभी नहीं मरेगा। ये किस तरह की बात, अबद तक कभी ना मरेगा, मर तो सारे रहे भाई, तो किस हवाले से नहीं मरेगा, किस तरह से नहीं मरेगा, हैं? किस तरह से नहीं मरेगा, मुझे बताइए। क्या निजात सिर्फ जिस्मों की होती है या रूहों की भी होती है। माय गॉड, रूहों की भी निजात। और अगर जिस्म की हो गई और रूह की हुई नहीं तो क्या करना है उस मिट्टी के पुतले का। बात नहीं समझे हैं तो बोलो आमीन। हालेलुया। और वो गए हैं बैतलहम के अंदर, अपने आबाई गांव के अंदर। और जब आबाई गांव के अंदर गए हैं तो वहां पर वक्त आ गया है वज़ा अमल का। आमीन आमीन। वक्त पेन लग गए। और अगर देखा जाए कहीं ना कहीं पर तो ये जो कुंवारी है मुकद्दसा मरियम, इसका पुराने अहदनामे में नाम नहीं दिया गया कि वो मरियम ही होगी। आमीन। और मैं एक और बात बताता चलूं तो मरियम के नाम से और भी खवातीन थी उस जमाने में, है ना। और पॉसिबिलिटीज में है कि मुमकिनात में है कि वो भी कुंवारियां हों। देखे ना, यहां पर अगर एक कुंवारी की शादी होने वाली है तो 20 कुंवारियां और भी होंगी, है ना। लोगों के घरों में बेटियां हमारे खानदानों में जो होती हैं, ऐसा है कि नहीं। तो एक ही मरियम तो नहीं थी, जैसे एक शमौन नहीं था, है ना, एक याकूब नहीं था, और इस तरह एक यहूदा भी नहीं, और बहुत से और भी, आप सब समझते हैं। लेकिन हम मरियम को लेकर के अगर बात करें तो मरियम अपने नाम की निस्बत से कुंवारी है, और उसी नाम की और भी बहुत सी
कुंवारियां हैं या मरियम नाम की औरतें हैं, आमीन, लेकिन उनमें से किसी के पास खुदा का फरिश्ता नहीं भेजा गया। मेरे अजीजों, खुदा का फरिश्ता आपके पास आए ये छोटी बात नहीं है। आपके पास वक्त का पैगाम लेकर आता है वो। जब दुनिया डूबने के करीब होती है तो टेल टाइम के ऊपर खुदा अपने फरिश्ता को भेजता है। रात को हम पढ़ रहे थे, टॉपिक था रहनुमाई का सितारा। रहनुमाई के सितारा एक तो वो था जिसने मजूसियों की रहनुमाई की। फिर आगे चल के मुकाशा के दूसरे चैप्टर में हमें 7 सितारे खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में नजर आते हैं। वो क्या है? वो बताता है ये 7 सितारे 7 कलीसियाई ज़मानों के फरिश्ते हैं। ओ भाई, 7 के तो हो गए, तो हमारा किधर गया? लोकां सारियां दा पता ते अपना एक भी नहीं पता। लोग कहते ने एशिया कूचक के थे। एशिया की कलीसियाओं को कहा गया था भाई, अच्छा तो इसका मतलब है ये कलाम हमारे लिए वैलिड नहीं रहा। ये एशिया वालों के लिए कलाम एशिया कूचक के लोगों के लिए है, जबकि मैं तो ये समझता हूं कि ये कलाम कल, आज, बल्कि अब तक यकसा और ला तब्दील है। ये जैसा कल था उनके लिए, उसी तरह आज हमारे लिए भी है। आमीन। मेरे अजीजों, मरियम एक रेवलेशन है। मरियम एक कुंवारी होते हुए प्रेग है, हामला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी इस जमाने में आखिरी 7वें कलीसियाई जमानों से भी निकलकर और छठों से भी निकलकर एक अलग हुई है, और वो कुंवारी है लेकिन प्रेग है। किससे? खुदा के कलाम के बीच से। किताब मुकाशवा के 12वें बाब में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, टाइम बचाऊंगा, अब पढ़ लीजिएगा। किताब मुकाशवा की किताब के अंदर 12वां बाब लिखा है। वहां पर फिर मैं क्या देखता हूं? एक जोर आवर फरिश्ता आसमान से उतरा है। आमीन। उसने अपना एक पांव खुशकी पर रखा एक तरी के ऊपर, और उसके हाथ में एक खुली सी, छोटी सी खुली हुई किताब है। बहनों भाइयों ध्यान दें, ये आपके मुतालिक बात हो रही। अब ये बात मेरी और आपकी होने लगी है। अब ये इस मरियम की बात होने लगी है। हालेलुया। साथ रहने को बरकत मिलेगी। उस मुकद्दसा मरियम ने एक मौलूद मुकद्दस को पैदा किया। अगर आप आज के जमाने की कुंवारी हैं जो प्रेग हैं खुदा के कलाम की उस छोटी सी किताब के साथ, हालेलुया, तो फिर आप भी दुनिया में जिंदगी को लेकर आएंगी। किसको? मौलूद मुकद्दस को। यीशु मसीह किसकी वजह से पैदा हुए? बताइए मुझे। फरिश्ते ने क्या किया उसके साथ? क्या डिलीवर किया? मुंह से प्रोसीड किया? क्या बोला? कलाम, टाइम मैसेज। उसने कहा कुंवारी सुन, तो हम लोग, उसने कहा ऐसे कैसे? ये तो हो नहीं सकता। होगा कैसे भाई? निकाल के बताओ आयत। होता है ना? क्यों नहीं हो सकता? Only believe everything is possible. ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। गॉड ब्लेस यू। खुदा खबर करते, ईमान रखें तो सब मुमकिन है। आमीन। समझे बातों को। मैं आगे लेफ्ट राइट में बढ़ना नहीं चाहता। सदक मिसक याद आ गया मुझे। आग की सी आजमाइश बहुत कम लोगों की होती है भाई। किसी को छुरी लग जाए, ठीक है, गला यहां से ऐसे हो गया, ठीक है, थोड़ी सी खाल उतार ली, मैं वैसे बात कर रहा हूं, ठीक है, 2 थप्पड़ लग गए यीशु के नाम पे, ठीक है, पर पूरे के पूरे ही 3 लोग फेंक दिए आपकी जलती हुई भट्टी के अंदर, फिर भी टस से मस नहीं। क्या था? बिलीव सिस्टम। किनके लिखी है ये किताब? ये सदरक मिसक किनके लिए बाइबल मुकद्दस में कंपाइल किए गए? गैर कौमों के लिए? क्या किसी और कौम? नहीं भाई, हमारे लिए। हमारी डिश है ये, हमने खानी है। ये मैं और आप ही हैं, ये मैं और आप ही है मेरे अजीजों। और अगर मैं थोड़ा सा आपकी इजाजत से आगे बढ़ जाऊं तो ये सदरक मिसक अब्दुल नजू ईमान उम्मीद और मोहब्बत है। ये तीनों ही दामी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये 3 हो जाते हैं तो फिर लाजमी चौथा आता है। आमीन। फिर उनके बाल भी जलने की बू नहीं आती। हम वहीं पर चलेंगे। हुआ क्या है मेरे अजीजों? वो कुंवारी हामला हुई है। उस जमाने में फरिश्ता आया है, वो उस कलाम से मुतअज्जब हुई है, हैरान, वंडरिंग में आ गई है, बड़ी हैरान हुई है कि कैसे होगा, क्योंकि कलाम तो था, रूह कुदस भी था, लेकिन कभी तजर्बा नहीं था। हालेलुया। जिन्ने भी नसना तो क्रिश्चियन अगर एक्सपीरियंस नहीं सानू मसीहत दा किसी मामले च, तो फिर हम अभी थोड़े हल्के फुल्के क्रिश्चियन हैं। भार वाले क्रिश्चियन नहीं है। भार ना ला भाई जरा, वो नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰ ਅਸਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਈਦ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਤਾਰਾ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਭਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰ। माफी ਨਾਲ मैं गल कर रहा हूं, क्योंकि हमने जिंदगियां बचानी है। हालेलुया। लेकिन जिंदगियों को बताना भी है। किथे को तुसी
आगे चलते हैं। तो क्या हुआ भाई, वो निकले और जब बैतलहम में पहुंचे और उस दौरान के अंदर वज़ा हमल का वक्त आया, बैतलहम में पहुंचकर वज़ा हमल का वक्त आया, आपके अपने इलाके में पहुंचकर, अपनी टेरिटरी में पहुंचकर आप जो है आपके डिलीवरेंस का टाइम आता है कि आपने क्या डिलीवर करना है। हालेलुया। और जब वो टाइम आया तब एक मुनज्जी पैदा हुआ और एक मौलूद मुकद्दस पैदा हुआ। कहां पर? क्या गैर कौमों के अंदर जाकर पैदा हुआ? नहीं, बैतलहम में। ये बैतलहम किसका इलाका था भाई, बताइए मुझे जरा। बैतलहम जो था किसका इलाका था? इसको बैतलहम अफराता भी कहा गया है, दाऊद का इलाका। और यस्सु के मुतालिक लूका ही में अभी भाई ने तलावत किया कि यस्सु मसीह इब्ने दाऊद भी है। अगर यस्सु इब्ने दाऊद है तो हम भी इब्ने दाऊद हैं, पर हमारा दाऊद कोई और है, वो खुदावंद यस्सु मसीह है। हालेलुया। अगर यस्सु इब्ने दाऊद है और उसके तख्त पर बैठेगा तो हम भी इब्ने दाऊद हैं, हम भी यस्सु के तख्त पर बैठेंगे। हालेलुया, तारीफ हो खुदावंद के नाम की। और फिर आखिर में चल के थोड़ा सा पढ़ा बीच में, मैं आयतों को याद कर रहा हूं कि जहां पर कहा कि वो क्या करेगा बच्चा, क्या बोला फरिश्ते ने? वो बच्चा अपने बाप दाऊद के तख्त पर बैठकर इसराइल पर अब्दुल आबाद क्या रहेगा? बादशाही करेगा। अब आ गई है बड़ी समझने वाली बात, बड़ी। दुल्हन को कौन लेने आ रहा है भाई? पॉइंट टू पॉइंट दस दे जाओ सारी, तुसी इतना पता है तुहानू, इन्ने अनपढ़ नहीं हो तुसी। दुल्हन को कौन लेना आंदा है? कि कोई कर्नल लेना आंदा है, जनरल सुल्तान है ना, कोई सलातीन वाला कोई बादशाह है वो लेना आंदा है? नहीं नहीं, वो भावें जिन्ना वड्डा मर्जी बादशाह है, हुंदा की है उस टाइम? दूल्हा ही है भाईजान। तो दूल्हा की है? उसने कहा अब से तू दुल्हन और दुल्हा तू दो नहीं बल्कि एक ही बदन हो गए। तो एक ही बदन है तो फिर का दी डर यार। बात समझो, डर का मतलब समझते हैं, वो वाला डर नहीं कि बदतमीजी वाला, नहीं नहीं, फिर खादा डर अपना ही तो है ये बात। फिर मोहब्बत का जमरा आ जाता है। आमीन। तो हमें लेने कौन आ रहा है? बादशाह आ रहा है या दुल्हा आ रहा है? दुल्हा आ रहा है भाई, दुल्हा। इजराइलियों के लिए कौन आ रहा है? दुल्हा है? दसो दसो जल्दी दसो। इजराइली यस्सु नू दुल्हा मानते नहीं? मानते हैं क्या? नहीं मानते। जवाब है नहीं मानते। आमीन। तो क्या मानते हैं उसे? सादा सा जवाब है, बादशाह। पहली आमद में भी वो यही कहते थे, यही है बादशाह। फिर बाद में पता चले बादशाह तो है पर ये पहला सेशन है, हाले बादशाही करन नहीं आया, हाले जिंदगियां बचाना आया, जिंदगी तो बादशाही करना है। गल समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इजराइलियों के लिए वो बादशाही बन के आ रहा है भाई, हमारे लिए क्या बन के आ रहा है? दुल्हा। आपको याद होगा कि नए अहदनामे के अंदर मैंने पिछले दिनों कॉन्टेक्स्ट पढ़वाया था कि यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया के जो लोग हैं वो अपने ऊपर एक बादशाह चाहते हैं और उनके बादशाह उन पर हुकूमत करते हैं और वो इसको खुदा की नेमत जानते हैं। जो खिदमत करते हैं ना उन्होंने बादशाह दी, वो कहते हैं शुक्र है खानू मौका मिले बादशाह की खिदमत करन दा। नेमतें खुदाबंदी समझते हैं, पाक कलाम में ऐसा ही लिखा है, ये मैंने पढ़ा है। आमीन। लेकिन कहते हैं यीशु मसीह ऐ शागिर्दो ऐ रसूलो, जिनको मैंने आगे चल के लीड देनी है, जिनको मैंने आगे चल के लीडरशिप देनी है, तुमने काम करना है, मैं तुम्हारे दरमियान में बादशाह की मानद नहीं बल्कि खादम की मानद है। समझ आ रही गलती? यूहन्ना के 13वें बाब में 13वें बाब में एक्चुअली जब फसह का टाइम आया तो यीशु मसीह ने पांव धोने शुरू किए। इन शॉर्ट बात करता हूं, और आखिर में चल के यीशु पूछते हैं तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? पहले बड़ा रोक दे, पैसों पता है मैं क्यों कीता है सारा कुछ? तुसी मैंने उस्ताद कहते हो, खुदावंद कहते हो, बहुत अच्छा है, क्या करो? लेकिन मैं उस्ताद और खुदावंद हुंदे होए कुछ कीता है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ पैर फड़ के ते उन्हें वॉश कीता है, धोता है। आमीन। इसलिए तुम पर भी फर्ज है कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। देखो मैंने तुम्हें एक लिखा है पाक कलाम में, नमूना मॉडल दिया है। समझो ना गल नूं? आपको पता है फर्ज दा लफ्ज किथे किथे इस्तेमाल है? यहां पर हुआ है भाई फर्ज का लफ्ज इस्तेमाल। तुम पर भी वाजिब नहीं है, फर्ज है। ये वाला फर्ज जब होती है फसा की मीटिंग तो कितने शामिल होते हैं? ना होने के बराबर। और जो होते हैं वो भी कहते हैं भाई मका पक गए या अक गए या थक गए, ना कहते हैं ना अक्सर, थक जाते हैं और कभी कभी वो मुकाबला नहीं कर पाते मौसम का, हालात का। आमीन। तो
अपने मौजू की तरफ आते हैं, मौलूद मुकद्दस। मेरे अजीजों, एक मौलूद मुकद्दस दुनिया पे आने वाला था और उसकी नवीद एक दोशीज़ा को दी गई, एक कुंवारी को दी। एक मौलूद मुकद्दस को, एक मुकद्दस मौलूद को, एक मुकद्दस पैद बच्चे को खुदा दुनिया में लाना चाहता था एक कुंवारी के जरिए से। आमीन। और उस कुंवारी को ट्रैवल करवाया, उसके हस्बैंड को ट्रैवल करवाया और एक पॉइंट पर लेकर गया, उसी के आबाई गांव में। क्या आज हम कहीं और तो नहीं बस रहे? कहीं और का मतलब समझते हैं? क्या हमारी वो जगह है, उस जगह पर हम हैं ईमान के लिहाज से जो हमारी होनी चाहिए? क्योंकि ईमान वाला ही प्रेग्नेंट होता है। उसने कहा मेरे लिए तेरे क्या था? ये ईमान था, बिलीफ सिस्टम। अगर उस कुंवारी ने कहा तो क्या आज हम कह सकते हैं मेरे लिए तेरे कॉल की माफी को? किसको कहा था? बाय द वे किसको कहा था बताइए मुझे जरा। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। फरिश्ते को कहा था ना, किसी नबी को तो नहीं कहा, है ना? खुदा ने खुद क्यों नहीं बात कर ली? भाई खुद ही कर लेता, मूसा से कर लेता था, प्रॉब्लम क्या है? पर नहीं, कभी कभी खुदा किसी की जगह नहीं लेता। मैं जब यहां से कभी बात करनी हो तो मैं प्रिजाइडर को पूछता हूं भाई इजाजत है मैं कर सकता हूं बात? कैसे सर? क्यों? क्योंकि मैंने ही तो जगह दी है उसे। अगर मैं ही उसका हक मार जाऊंगा तो मामला क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। तो खुदा ने फरिश्ते ठहराए हैं जाकर पैगामात देने के लिए और उसके जरिया से भेजा। लेकिन फरिश्ते रेवलेशन रखते हैं, फरिश्ते स्टार्स भी हैं। आमीन। स्टार ऑफ गाइडेंस हैं, रहनुमाई के सितारे भी हैं, पैगामात के सितारे भी हैं, प्लेग्स के बलाए लाने वाले भी सितारे हैं। आमीन। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो मेरे अजीजों, ऐसे ही बाइबल को नहीं, बाइबल को जरा रेवलेशन लेवल पे जाके पढ़ना है आपने। आमीन। कुंवारी चली है, उलूद मुकद्दस को पैदा करना है, लेकिन पैदा कहां पर हो रहा है? उनके अपने जो उनका गांव था जहां से वो उन्होंने पैदाइश ली थी और वो दाऊद का शहर था, उस वहां पर आकर क्या किया? वहां पर आकर मौलूद मुकद्दस के पैदा होने का वक्त आ गया और कुंवारी के डिलीवरेंस का वक्त आ गया। आमीन। बर्थ पेन लगे और उसके चलते में उनको कहीं जगह नहीं मिली। जब यीशु ने पैदा होना था तो कुछ खास जगह नहीं मिली उन्हें। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं? खास जगह क्यों नहीं मिली? क्या ये खुदा के ठहराए हुए इंतजाम के मुताबिक नहीं था? बिल्कुल खुदा के ठहराए हुए इंतजाम के मुताबिक था। खुदावन हमेशा बेशनाख्त जगहों को और बेशनाख्त लोगों को और बेशनाख्त चीजों को लेता है और उनमें से अपनी शनाख्त को पैदा करता है। समझे बात? समझे बात? मैं ये समझता हूं मरियम और यूसुफ को शायद वहां पर पूरी दुनिया में कोई भी ना जानता हो। आज उस घर में या उस घर में कितनी दुनिया आपको जानती? कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जो मीडिया के ऊपर हैं, उनको कुछ लोग जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको लोग जानते हैं। जो बहुत साइंसदान है, वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े बड़े है ना नाम हैं, उनको लोग जानते हैं। लेकिन छोटे मोटे गांव के छोटे मोटे घर में छोटे मोटे से दो लोग जो हैं उनको कोई भी नहीं जानता। तो उनको कौन जानता था? लेकिन आज पूरी कायनात के अंदर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ में से डिलीवरर बच्चे को उनके समेत आज पूरी कायनात जानती है। सारी दुनिया में खुदा ने उनकी शनाख्त करवाई है। खुदा बेशनाख्त लोगों में से अपनी शनाख्त पैदा करता है, उनको लेकर के आसमानों के सितारे बनाता है। आमीन। क्या पाक कलाम भरा नहीं है इन गवाहियों से? पाक कलाम में लिखा है उसने बेवजूदों को, कमीनों को, नकम्मों को, बदचलनों को पकड़ा और तख्तों पर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। उसने अकल वालों से ये बातें ओझल रखी। आमीन। उसने कहा मुबारक है तुम्हारी आंखें, क्योंकि ये वो देखती हैं जो नबियों, रसूलों और बादशाहों की आरज़ू थी कि देखें मगर देख ना सके। आगे चल के मैं एक दो आयत आपको दूंगा, शॉर्ट कर देते हैं। मौलूद मुकद्दस पैदा हुआ और मौलूद मुकद्दस के दो ग्रुप हैं जो बड़ी बेचैनी से ढूंढ रहे हैं, है ना? सबसे पहले पहुंचा कौन सा ग्रुप? कौन सा ग्रुप? जो उसी इलाका में थे। कौन से इलाका में थे? ट्विस्ट है भाई। उसी इलाका में अपने गल्ला की निगहबानी, कौन से इलाका में गल्ला की निगहबानी कर रहे थे बताइए जरा? और जिधर मरियम और यूसुफ थे भाई, बैतलहम में ही। बात समझ रहे हैं? और कुछ माहिर फलकियात है ना, जिनका बैकग्राउंड मादी और फारस में से जाकर निकलता है, हैं? जो नबूकदनेस्सर के जमाने के लोग थे, वहां से एक लीड लेकर चल रही एक लोगों की ट्रैक है, मतलब लोगों की एक नस्ल है जो चल रही है, जो माहिर फलकियात थे। खुदा ने उनको नॉलेज दिया हुआ था और वो सितारों का बड़ा अच्छा जानते थे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझे बात को? लेकिन वो बरगजीदा बीज थे।
खुदा ने गैर कौमों में अपना बीज रखा हुआ है, रखा नहीं था, चला गया था और अब निकाल रहा था उनको। समझ रहे मेरी बात को? सारे ही आदम से पैदा हुए, समझे बातों को? आदम और हवा से पैदा हुए सारे। हालेलुया। मैं इसके गहरे में नहीं जाना चाहता। सारे आदम और हवा से आए, लेकिन आगे चल के कोई इधर चल पड़ा, कोई इधर चल पड़ा, कोई गैर कौम, कोई बुत परस्त, कोई बुद्ध मस्त, कोई आग को मानने वाला, कोई कुछ को मानने वाला, कोई सितारों को और कोई दरख्तों को। है बात समझ रहे? वो चले, उन्होंने कई दिनों का सफर किया। कुल मिला के जो हमारे मुफस्सरीन हैं, जो किताबों में लिखते हैं, जो हमसे बहुत पहले थे, उन्होंने कहा कि कम से कम कमो बेश जो है वो 2 साल का अरसा उनको लग गया। हालेलुया। वो एक रहनुमाई के सितारे की गाइडेंस में वहां पर पहुंच गए। काफी लेट पहुंचे, लेकिन फाइनली पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? 2 साल वेट किया। क्या 15 दिन में लोग अक पक और थक जाते हैं? यसू लभण चढ़े हैं, बह जा भाई, बड़े चर्च करा लेने, इन्ने हो गए, बस ठीक है। इन्नी होंदी दुआ कि हुण हर हफ्ता बुद्ध मीटिंग, जुमा मीटिंग, फलाना मीटिंग, टमकाना मीटिंग है। फिर तुसी पार लग गए भाई, फिर तुहाडा खुदा ही हाफिज है। मैं तो नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। बल्कि बात समझ रहे? नहीं अक्के, क्या पैसे की कमी थी? लग्जरी लाइफ थी उनकी भाई, ऊंट थे उस जमाने में। ऊंटों पे सफर करना बहुत बड़ी बात थी, बड़े पैसे वाले लोग थे। और कहा जाए तो वो सलातीन थे, बादशाह थे। वो ढूंढ रहे हैं किसको? बादशाह को। रास्ते में आ गया एक बादशाह। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 10-4 ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। थोड़ी देर बाद पूरा टब्बर ही डुबोगे तुझे। समझे? पहुंच गया ना कादिश बरनी पे, जब किनारे पे लगने वाली थी बनी इस्राइल। थोड़े जे होशियार हो जाना, समझ रहे ना? क्योंकि वो जो है ना, वो बहुत चलाक है, बहुत होशियार। इस जहान के फर्जंद दुनियावी मामलात में खुदा के फर्जंदों से ज्यादा चलाक हैं। क्यों चलाक हैं? चलाक तद चलाकी लागे सन क्योंकि उस टाइम से रेवलेशन नहीं सी खुलिया। 7वें जमाने च हर चीज खुल डुल के सामने आ गई। हुण अज दी हवा ते अज दी मरियम भरमाई नहीं जा सकती। आज की हवा को कोई गुमराह नहीं कर सकता। मैं डरता हूं, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? ये समझी हुई है, इसे पता है, क्योंकि अंदर क्या है? सही बीज है, सही बीज है। और बीज क्या है? खुदा का कलाम। और कलाम ही तो मुजस्सम हुआ था, और वही इकलौते और पहलौठे की सूरत में, यीशु मसीह की सूरत में हमारे दरमियान में रहा और आज भी है। हालेलुया। वहां पर रास्ते में एक बादशाह आ गया है, और वो वहीं पर रुक के थोड़ी देर सेंस ने काम किया कि शायद यहीं पे हो, वहां पर नहीं था। बादशाह ने कहा भाई मिले तो बता देना। और फिर फाइनली वो पहुंच गए। और जब पहुंचे, पहुंचना क्यों था? इतनी कौन सी जल्दी थी? वहीं पे आते हैं। जल्दी ये थी भाई, खुदा ने अपना कलाम पूरा करवाना था। कैसे? अगर वो पहुंचते नहीं तो वो 3 तरह के जो गिफ्ट हैं उनका रेवलेशन कौन जान पाता? आज कई जमानों पहले लिखी गई बाइबल के अंदर उनका वाकया सोना मुर लुबान के तौर पर कैसे रिप्रेजेंट होता? समझ आनी गल दी? तो क्या था भाई? ये यीशु से ताल्लुक रखने वाले 3 गिफ्ट थे। तो वहां पर गए और उन्होंने सोना मुर और लुबान पेश कर दिया। और मैंने बताया था कि सोना किस बात को? बादशाह को बयान करते, यीशु बादशाह भी है। हालेलुया। और मुर जो है, मुर एक कड़वी जड़ है, और कड़वाहट जो है वो जुल्म है। और जुल्म यीशु मसीह पर हुआ, यानी यीशु मसीह को छेदा गया, मारा गया और फाइनली दफन भी किया गया। और फिर यीशु मसीह खुदा के जलाल में दोबारा से जी उठे। ओके, तीसरी चीज क्या थी? लुबान। लुबान चूंकि कहानत की हैकलों के अंदर और मस्जिदों के अंदर लुबान की खुशबू जो थी वो जलाया जाता था। आमीन। आग के ऊपर। तो ये तीनों चीजें, यीशु मसीह हाई प्रीस्ट भी है, और यीशु मसीह निजात दहिंदा यानी जान देने वाला हमारा रिडीमर भी है, और यीशु मसीह क्या है? हमारे लिए बादशाह भी है। हमारे लिए का मतलब समझते हैं? दुनिया का बादशाह, बादशाह होते हुए शोहर भी। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने एक मिसाल दी कि सबा की मलका क्या करेगी? सबा की मलका, दखन की मलका जो है वो इस जमाने के लोगों को क्या ठहराएगी? मुजरम ठहराएगी। कहां पर बैठकर ठहराएगी भाई? मुजरम ठहराना से उत्ते जाना पैदा है। कहां पर? तख्त पर। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, दुल्हन तो अपने दुल्हा के साथ बैठी होगी, तो फिर वो बादशाह बनी इस्राइल पर बादशाह करने आ रहा है, दुल्हन पर बादशाह करने नहीं आ रहा। समझाई गल? इन बातों को ज़हन में रखना है। ओके, आगे चलते हैं। हमने देखा यहां पर कि यूहन्ना भी कुछ लोगों का जिक्र कर रहा है जिनको उसने बेटे कहा है। किसके? खुदा के, द सन्स ऑफ गॉड। मैं कहूंगा सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, खुदा की बेटियां और बेटे।
क्योंकि जब बेटा आता है तो बेटी वहीं पे मौजूद होती है, रिप्रेजेंट करता है बेटा पूरी फैमिली को। आमीन। घर की बच्चियों को भी, है ना, ऐसा है कि नहीं? अपनी माँ को भी रिप्रेजेंट कौन कर रहा होता है? उस घर का मर्द, जो भी मौजूदा मर्द होगा। आमीन। तो जब फर्जंदों की बात होती है तो पूरे की पूरी फैमिली की बात, इट्स मीन। हालेलुया। तो फर्जंद होने का हक दिया, हक मिल के गया। कैसे? पुत्र अधिकार मिल गया, सनशिप कैसे मिल गई भाई? कुछ ने ठुकरा दिया और कुछ ने ठुकराया नहीं, उन्होंने उसे क्या कर लिया? कबूल करने का मतलब जेब में नहीं रख ली, उसकी बात दिल में रख ली, कंसीव कर ली, है ना। और कंसेप्शन जब हो जाती है तो फिर एक अमल शुरू होता है, प्रेगनेंसी शुरू होती है। और जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो कुछ टाइम के बाद फिर डिलीवरेंस होती है। लेकिन डिलीवरेंस होने से पहले कुछ बर्थ पेन है। आमीन। उसने कहा ले ये छोटी सी किताब यूहन्ना खा ले, यूहन्ना दुल्हन की तमसील है। और ऐसा नहीं था कि उसने खुद दे दी, नहीं, उसने कहा ऐ खुदावंद ये छोटी सी किताब मुझे दे दे, मैं खा लूं। तो उसने कहा ले ये तेरा मुंह तो शहद की मानत क्या कर देगी, लेकिन तेरा पेट बर्थ पेन से भर देगी, कड़वाहट लग जाएंगे तुझे लेफ्ट राइट के सारे लोग तेरा बाइकआउट करेंगे। वो बोलेंगे ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? और ये बात भी सही है। सुनेगा कौन? पंजा पुत्रा चो कोई एक ते दिल गुरदयाला होएगा, कोई एक ते ती दिल गुरदयाली होएगी। और है भाई, है, समझे बातों। तो क्या हुआ? कुछ बेटे और बेटियां हैं जिनके मुताल्लिक यूहन्ना बयान कर रहे हैं कि जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा है। आपके पास राइट्स। आपको पता है यीशु मसीह जब तब्दीली सूरत के पहाड़ पर थे तो उनकी सूरत बदल गई, और ये 3 लोग थे वहां पर इसके शागिर्दों में से। ये गए और इन्होंने जाकर कहा क्या खुदावंद क्या ही अच्छा हो कि हम 3 डेरे बनाएं, एलिया के लिए मूसा और एक तेरे लिए। लिखा है उसी टाइम पर एक बादल आया और उस बादल में से क्या आ गई? एक आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। आमीन। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी। तो ये क्या है? पुत्र अधिकार, इसको कहते हैं सनशिप, इसे कहते हैं ले पालक होने का हक। हालेलुया। समझे बातों को? अगर यस्सु को बेटा होने का हक हासिल है तो यस्सु के जितने फॉलोअर्स हैं खुदा के बेटे और बेटियां और मसीह की ब्राइड होने का हक रखते हैं। हालेलुया। उसके बदन का हिस्सा होने का हक रखते हैं। आमीन। अब ये वाले जो पैदा हुए, क्या ये किसी और तरीके से हुए? क्या ये यस्सु वाले तरीके से नहीं हुए? कितनी चीजें हैं इसमें लिखी। यूहन्ना पहला बाब 13वीं आयत पढ़े जल्दी से। वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादा से ना इंसान 3 चीज़ां, इन्हां 3 चीज़ां नाल नहीं पैदा होए। इन्हां 3 चीज़ां नाल ही खुदावंद यीशु भी नहीं पैदा होए। समझे है कि नहीं समझे? यीशु मसीह इन 3 चीजों से पैदा नहीं हुए। और ये भी जो बेटे बनने का हक पा रहे हैं और पा रही हैं, ये भी इन 3 चीजों से पैदा नहीं हुई, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना खून से, ना इंसान के इरादे से। इंसान का इरादा क्या कहता है? बच्चा बड़ा हो गया शादी कर दो, ताकि हम बड़े फले फूले और आगे चल के अपनी नस्ल को बढ़ाएं। आमीन। ये जो हमारा खानदानी शजर है, दरख्त है, ये बढ़े। आमीन। इस तरह नहीं हुआ। यीशु मसीह एक मौजज़ा था, बल्कि क्या लिखा है आगे चल के? बल्कि वो खुदा से। एक और बंदा है जो खुदा से पैदा हुआ है, कौन था? लूका की इंजील के 3-4 बाब में एक निस्बनामा मिलता है और सबसे आखिर में जाके लिखा है आदम खुदा से था। और आगे चल के 6 बाब में कहता है खुदा के बेटे, उसेद की सही वाली नस्ल है। सही है? तो इसका मतलब क्या? कोई नस्ल तो थी जिनको खुदा के बेटे होने का एक टाइटल मिला हुआ था। इसी तरह चलते में यूहन्ना भी बता रहा है कि वो ना जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुआ है, ना इंसान के इरादे से, बल्कि किससे पैदा हुए हैं? तो खुदा से पैदा होने का क्या मतलब यार? यीशु मसीह ने तो कोई पैदा होने के लिए पहले बपतिस्मा नहीं लिया, हमें लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या बपतिस्मा पैदा होने की अलामत है? अच्छी बात है, एक रुकन है, लेकिन हम पैदाइशी तौर पर प्री डेस्टिनेट होते हैं। इस बात को ज़हन में रख लेना। आप पैदाइशी तौर पर बरगजीदा और मुकर्रर शुदा होते हैं। लिखा जिनको उसने पहले से जाना उनको बुलाया, और जिनको बुलाया उनको कायम और मुकर्रर भी किया, और जिनको कायम और मुकर्रर किया उनको हक भी बख्शा। तो इसको क्या कहते हैं? इल्म साबक के अंदर आप कहीं ना कहीं आदम के अंदर मौजूद थे, आदम की सही वाली नस्ल के बीच में।
और आदम की सही वाली नस्ल खुदा की नस्ल है। हालेलुया। समझे मेरी बात को? पहला आदम खुदा की नस्ल, उसकी नस्ल खुदा की नस्ल, दूसरा आदम खुदा की नस्ल और उसकी नस्ल खुदा की नस्ल। पर जो नस्ल, जिस नस्ल से हम हैं, वो अपने आप को दाऊद की नस्ल कह रहे हैं। कहां पर? मुकाशफे की किताब के 22वें बाब में अगर जाएंगे 16वीं आयत पढ़ेंगे, लिखा है मैं दाऊद की असलो नस्ल हूं और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। हालेलुया। मुझ यस्सु ने अपना फरिश्ता तुम्हारे आगे कलीसियाओं के बारे में भेजा। वहीं पे ऐसी आयत है, मुझ यस्सु का मतलब समझो, मैं यस्सु ने अपना फरिश्ता तुम्हारे आगे कलीसियाओं में भेजा। कलीसियाओं में तुम्हारे आगे भेजा है, कलीसियाओं तुम्हारे आगे मैंने अपना फरिश्ता भेजा। हर कलीसिया के आगे मैंने अपना एक फरिश्ता भेजा। हालेलुया। ऊपर वाले फरिश्ते तो जी लोग डरते नहीं यार, समझते ना गल, वो किंज यार किंज की मुश्किल हो जाएगी। क्या ख्याल है? खुदा का कुछ सामना नहीं कर सकता, इसलिए यीशु को भेजा। यीशु से पूछा खुदा को हमें दिखा, हमारे लिए इतना ही काफी है। उसने कहा तू इतनी मुद्दत से मेरे साथ है ना? क्या तू मुझे नहीं जानता? फिलिप्पस जिसने मुझे देखा उसने तो इसी पे इत्तफा कर, इसी पे यकीन कर ले, तेरे लिए यही भला है। आमीन। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ पैदा हुए हैं। क्या ये जो बाद में पैदा हुए हैं यीशु के अलावा, ये वाले यूहन्ना की, इसमें कहीं आप और मैं है कोई? ईमान से बताएं आप हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे खुदावंद की मर्जी और मंतक के मुताबिक उनको अपना शहर छोड़ना मरियम यूसुफ को पड़ा और वहां पर गए ईसा नबी के लिए होता है, थोड़ा डिलीवरी कराने गए सन। समझते ना गल? डिलीवरी कराने नहीं सन उत्थे गए। डिलीवरी दे भेजते लोग घरों नहीं निकलते हैं क्या? नहीं निकलते, लेकिन खुदा ने निकाला उनको, क्योंकि डिलीवरी होनी ही रोटी के घर में थी। क्योंकि पैदा भी कौन होने वाला था? रोटी का घर। यीशु ने कहा मैं बाप के नाम से भेजा गया और आया हूं, बाप के नाम से। तो यीशु मसीह के एक बाप का नाम, दुनिया में जो एक बाप है वो कौन था? लिखा है वो उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। हालेलुया। तो दाऊद उसका यीशु का बाप है भाई, है ना? तो दाऊद जो उसका बाप है रहता किधर था? बैतलहम में, रोटी के घर में। तो उसका बेटा भी कहां पर आकर पैदा हुआ? रोटी के घर में। और पैदा क्या हुआ? जिंदगी की रोटी के तौर पर। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस कहते हैं हमारी बातें लोगों को बेवकूफी लगती है, क्योंकि ये बातें रेवलेशन से भरी हैं। हालेलुया। अच्छा, इन सब में भी मैं और आप हैं जो क्लेम कर सकते कि हाँ हमने भी नई पैदाइश ली है। अकॉर्डिंग टू द रेवलेशन ऑफ गॉड, खुदा के मुकाशफाती बपतिस्मे के मुताबिक हमने बपतिस्मा लिया। नो प्रॉब्लम कि दुनिया क्या कहती है ना? बात को समझें। और जब बपतिस्मा ले लिया तो उसके बाद हम क्या हो गए? मसीह की तरह मौलूदे मुकद्दस पैदा हो गए। बहुत से लोग ना बहुत बड़ी बात कर देते, कहते हैं हम तो यीशु कैसे हो सकते? कैसे? बिल्कुल नहीं हो सकते, मानने वाली बात है। क्योंकि हम तो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए ना। हम तो, हमारा तो एक वालिद था ना, एक खानदान था, शजरा था, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं पर हम थे खुदा के ही जो किसी के जरिया से पैदा हुए। यीशु भी खुदा ही का था जो किसी के जरिया, किसके जरिया? कुंवारी के जरिया। लेकिन एक बात बताता चलो, कुंवारी का 1% भी, -1% भी उसमें नहीं था। कुंवारी, अब बात करेंगे तो बात आगे निकल जाएगी, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। आमीन। कुंवारी को खुदा ने खिदमत ली उस कुंवारी से। मैं इसको जितना भी अच्छे लफ्जों में बयान करूं, मुझे इससे ज्यादा अच्छे लफ्ज नहीं मिल रहे कि उस मुकद्दसा कुंवारी से खुदा ने खिदमत ली भाई। और खिदमत छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी। और कुंवारी ने पेश कर दिया अपने आप को। और कुंवारी ने कहा ऐ फरिश्ते, मेरे लिए तेरे जो कलाम तूने सुनाया है उसके मुताबिक हो। क्योंकि फरिश्ता कह रहा था, क्योंकि उसका कॉल जो है बेतासीर नहीं जाता। उसका कलाम बेतासीर नहीं, वो करेगा। और तू चुनाव में आ गई, अब तू आए कर, शाएं बाएं कर, जो भी कर वो होगा जरूर। आमीन। लेकिन क्या हुआ? इसी माँ के एक बेटे ने, इस माँ का एक बेटा पैदा हुआ, मौलूद मुकद्दस। पता नहीं कौन हुआ पैदा? मुकद्दसा मरियम से। कौन पैदा हुआ था? यीशु मसीह। यीशु मसीह जानकारी के आलम में है और मुश्किल पड़ी हुई है। तो ये खुदा से कहते हैं ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे। आमीन। तो आगे से बाद में कहते हैं कि फिर भी मेरी नहीं बल्कि, इसका मतलब क्या? खुदा का जो कौल, उसका कलाम, उसके बारे में लिखा गया था, वो पूरा होना जरूरी था। साधकों की नस्ल भी साधक होती है। बातों को समझो। आमीन।
تو بھائی یہ والے مولود مقدس آج موجود ہیں یہاں پر, اور مولود مقدس ہی مولود مقدس کی پہچان رکھتے ہیں. مولود مقدس پاک بچہ, پاک پیدائش والا بچہ, اور وہ خدا یسوع مسیح تھا ایک زمانے میں. آمین, ہاللویا. اور وہ خدا کا کلام تھا, بیج بن کے دنیا میں آیا, اور وہ جب پیدا ہوا تو پھر کیا ہوا, دنیا کے اندر ایک ہلچل مچی, اور اس پر بڑی پریڈکشنز ہوئی, بڑی پیشن گوئیاں ہوئیں. بزرگ شمعون جو ہیں اس نے پریڈکشن کی, کیا مریم کیا ہوگا, یہ بچہ دنیا کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے گرنے اور ان کے کچھ اور بہت سے لوگوں کے لیے اٹھنے کا باعث ہوگا. یعنی اس کے کلام سے بہت سے لوگ گر جائیں گے اور بہت سے لوگ اٹھ جائیں گے. یہ اٹھنے والے کون ہوں گے؟ جتنوں نے اسے قبول کیا. اور کیا وہ اسی ٹائم پر تھے؟ کیا یسوع اسی ٹائم پر تھا؟ نہیں, وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے, موجود ہے, اپنی کلیسیا میں چل پھر رہا ہے. آمین. اپنے رسولوں کے ذریعے سے, اعمال کی کتاب میں رسولوں کے اعمال نہیں تھے, رسولوں کے اندر مسیح کے اعمال تھے. ہاللویا. اور اسی طرح کلیسیاؤں میں کس کے اعمال چل رہے ہیں؟ جو صحیح کلیسیا ہے, جو صحیح طور پر مسیح کی دلہن برائٹ چرچ ہے, اس میں مسیح کے اعمال چل رہے ہیں. عورت مرد کا جلال ہے. عورت جو کلیسیا ہے اس کا شوہر کون ہے؟ یسوع مسیح. اس کا جلال, اس کا کریکٹر, اس کا مزاج, اس کی خوشبو, اس کا نور ہے نا, اس کا ذائقہ اس دلہن میں ہے. اور وہ دلہن کوئی اور تھوڑی. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی بات, میری بات, ہم سب کی بات ہو رہی ہے یہاں. یہ ہماری ہی پہچان ہو رہی ہے. ہاللویا. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, فٹافٹ حوالے پڑھیں, اور میں بات نہیں کروں گا, بس میں آپ کو ٹریک دیتا جاؤں گا. سنیں گے تو برکت ملے گی. نکالیے میرے ساتھ متی رسول کی ماں پر لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل, نکالیے گا چیپٹر 5 نکالیں. متی 5واں باب 8ویں اور 9ویں آیت پڑھ دیجئے جلدی سے. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. گال سمجھ آئیے؟ خدا کو دیکھنے کے لیے آپ کے دل کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے. آگے چلیے. مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں. مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے the کہلائیں. sons of God کہلائیں گے. کیوں سن آف گاڈ کہلائیں گے؟ کیونکہ سن آف گاڈ نے بھی صلح ہی کرائی ہے. پتا ہے نا, سمجھ گئے بات کو؟ آسان لفظوں میں بتاؤں آپ کو. یسوع مسیح صلح کا بادشاہ ہے, صلح سلامتی کا شہزادہ ہے. تو اس کی طرح کے جو اور مولود مقدس ہے یوحنا پہلے باب کے مطابق ہے نا, جو نہ خون سے, نہ انسان کے ارادے سے, نہ خواہش سے پیدا ہوئے, وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ صلح کرواتے ہیں, اور پھر وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کا ریکارڈ قائم کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں, اس معنی صلح کرا رہے ہیں. تو اگر آپ دعویٰ کرتی ہیں, کرتے ہو کہ ہم بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں, تو صلح کروائیں بھائی, جتنی ہو سکے صلح ہی کروانی ہے نا. پرابلم کی ہے کہڑے صلح کرانے لگے ہیں پیسے لگ دینے, تو یہ لگ بھی جان تو صلح ہی کران ڈے ہو نا تسی. کیڑا کو کسے نو ہے نا کو پٹھیاں گولیاں منڈان ڈے ہو. بہت بڑی بات. پہلا تموتھیوس 3 باب 16 جی. اس میں کلام نہیں, اس میں کلام نہیں. انگریزی کی بارے میں لکھا ہے there is no controversy. اس میں کوئی چھل نہیں, یہ کوئی گل نہیں ہے کرنے والی. یہ تو ہن کی گل کرنی ہے, تے حرف آخر ہے. اس کا مطلب سمجھ لو نا, ہن سمجھ لو. چلو آگے. کہ دینداری کا بھید بڑا ہے. یعنی کہ آپ کا جو دینداری کے ساتھ چل رہے ہیں, یہ دینداری کا بھید بڑا ہے. اس میں کوئی کلام نہیں, بہت بڑا بھید ہے دینداری اپنے آپ میں جی. یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا. سن دے جائے اور فرشتوں کو دکھائی دیا. اے کی گل ہے بھائی, یہ تو مطلب فرشتیاں نے بھی نہیں سی ویکھیا. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. ہاں جی, یہ مطلب کی ہے God was manifest in flesh. مطلب فلیش کا مطلب گوشت, جسم ہے. God کا مطلب خدا, حق تعالی, خدا ہے نا, باپ. واز مینیفیسٹ کا مطلب ہے مجسم ہویا, انہیں جسم لیا. کن نے؟ خدا نے. لوگ کی کہندے نے بدعت پلان ڈے ہو تسی. سمجھو کہ نہیں سمجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ غلط نہیں کہہ رہا ہے کہ یونانی کی ڈائریکٹ بائبل سے لیا گیا ترجمہ. اس لیے میں کہتا ہوں ذرا دھیان نہ پتر ہون, مقابلہ بہت سخت ہو گیا. سمجھ رہے نا میری گل؟ ہن لفظ ہی مار دے جے, اردو تے کٹ لو تے فرق, انگریزی تے کٹ لو تے فرق. کچھ لوگ اس بات کو استعمال کرتے ہیں. آمین. بائبل میں بے شمار جگہوں پہ اس بات کی شہادت ہیں. بھائی نے بہت اچھی بات کی, خدا برکت دے. تو کیا ہے؟ کہتا ہے گاڈ واز مینیفیسٹڈ. آمین. اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اوکے, تو لکھا ہے وہ جو جسم میں ظاہر ہوا, روح میں راست باز ٹھہرا, اور
फरिश्तों को दिखाई दिया। दिखाई दिया का मतलब क्या? कैसे दिखाई दिया भाई? कैसे देख लिया फरिश्तों ने? केड़े फरिश्ता ने देखा? कब देख लिया है? आगे आगे पढ़िए। और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई, आगे, और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। ये क्यों कौन है भाई? ये किस हस्ती की बात हो रही है? खुदावंद यीशु मसीह की बात, मौलूद मुकद्दस की बात हो रही है। और आगे चलें तो बिल्कुल उसी कॉपी पे है ना, जलाल में ऊपर उठाया जाना, ये दुल्हन के लिए भी है। हालेलुया। लेकिन मैं इसमें पॉइंट आपको दे रहा हूं मत्ती की इंजील के 5वें बाब की, जो हमने आज कौन सी पढ़ी? 8वीं और 9वीं। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, वो आमीन। और ऊपर क्या था? मुबारक है वो जो रहम दिल है, वो खुदा को। तो फरिश्तों ने नहीं देखा तो फिर देखा कब? जब यीशु पैदा हुए। ये जो ग्रोथ थी आसमान पर हम्द करती हुई, है ना, आलमे वाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और उन सब में जिनसे वो राजी है, क्या है? और जमीन पर उन सब में जिनसे वो राजी है, सुलह। आमीन। तब देखा था भाई, तब देखा था। वरना तो आप जाएं पुराने जायचे के अंदर तो वो देख नहीं पा रहे खुदा को, क्योंकि खुदा नूर है। जब तक खुदा ने अपना तजस्सुम बदन तैयार नहीं किया, प्रॉब्लम थी। आमीन। तो उसका बदन कौन है? खुदा यीशु मसीह, मौलूद मुकद्दस बदन। हालेलुया। अब यही 14वें बाब के अंदर वही बात आ गई, बात देखने की आ रही है। और मौलूद मुकद्दस जो है, पाक लोग जो हैं, पाक पैदाइश वाले लोग जो हैं, और उसका दूसरा तरीका पाक पैदाइश का ये है कि हम एक अपने माँ बाप से पैदाइश लेते हैं, और फिर खुदा उनके हुक्म के जरिए असर हम क्या करते हैं? पानी का बपतिस्मा लेते हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर के। आमीन। और फिर हमारी एक नई पैदाइश होती है, और उस पैदाइश को रोमियो के खत के 6 बाब की पहली दूसरी तीसरी आयत में लिखा गया है, क्या तुम ये नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। अब उसकी मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से, जैसे मसीह बाप के जलाल में मुआ और फिर दफन हुआ और फिर जी भी उठा, हम भी उसके साथ मरते, दफन होते और फिर क्या हो जाते हैं? बाप के जलाल में जी उठते हैं। ये जी उठना पैदा होना ही है ना? बर्थ अगेन है, दोबारा पैदाइश है भाई। तो वाक़ कलाम में लिखा है जो कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो खुदा को देख नहीं सकता, जब तक कोई नए सिरे से पैदा। बात समझ रहे? तो नए सिरे से पैदा होना मौलूद मुकद्दस है ना। और मौलूद मुकद्दस को आपको पता है क्या कहते हैं? हॉली बर्न वन। क्या है? जो मुकद्दस तरीके से पैदा हुआ है। हालेलुया। समझे इन बातों को। आज चूंकि मसीह की विलादत के दिन के तौर पर इस दिन को डिसाइड करके लोग मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक ही बात करूंगा, आखिरी बात करूंगा, इसके बाद आमीन करते हैं। क्या समझते हैं आप? ये जो यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, क्या है ये ऑल अबाउट? ये ऑल अबाउट क्या है? ऑल अबाउट का मतलब है ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ओके। कुछ लोगों का ख्याल है कि द क्रिसमस डे इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। समझ लो? नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। ये सच नहीं, सच ये नहीं। सच ये है, दिस इज ऑल अबाउट वर्शिपिंग डे। ये वर्शिप का दिन है, इतने बड़े काम की शुक्रगुजारी का दिन है। ये जिंगल बेल गाने का दिन नहीं है भाई, बाय द वे, जो आप इतनी मेहनत करके कर लेते हैं। नहीं नहीं, हाँ एंजॉय कर लेते हैं। फिर मैं कहता हूं ये सेलिब्रेशन के तौर पर नहीं, ये वर्शिपिंग डे के तौर पर है। वर्शिप यानी प्रस्तुष के दिन को और भरपूर तरीके से खुल के। और मैं इसके चलते मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छा खाना ना बनाएं, कपड़े ना पहने। जाहिर है जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो घर में, और फिर उसकी बर्थडे पे बड़ा कुछ होता भी है। लेकिन यहां पर क्या होता है, आमतौर पर 90% सिर्फ सेलिब्रेशन पे ध्यान दिया जाता है, वर्शिपिंग पे ना होने के बराबर दिया जाता है। ये मैं आखिरी सबक आपको देना चाहता हूं, मेरे पास था, मैंने कहा आपको बताऊं। और इस दिन को दिल से मनाएं, और दिल से इस तरह मनाएं क्योंकि यीशु मसीह को दुनिया की आम हस्ती नहीं थी जो इस दुनिया में पैदा हुई, बहुत बड़ी हस्ती थी। ना उस जैसा कोई दुनिया में पहले था और ना ही कभी बाद में होगा। और एक और बात करता चलूं, ऐसा नहीं है कि उसने अपने जैसा कोई और पैदा ही नहीं होने दिया। अभी हमने पढ़ लिया, उस जैसे और भी पैदा हुए। एक जमाने में वो इकलौता था, एक जमाने में यीशु इकलौता था, लेकिन आज अगर यीशु को कहेंगे तो वो पहलौठा है। आज वो इकलौते से आगे निकल चुका है, पहलौठा हो गया, और उसके पीछे मैं और आप भी हैं भाई, खुदा के बेटे बेटियां।
پہلا بچہ وہ، پہلا پھل وہ، اور اس کے بعد ہم سارے بھی پھل. اور یہ دوسری ٹوکری ہے جو اٹھانے والا ہے خدا پھلوں کی. پہلی ٹوکری اس نے پہلی آمد میں اٹھا لی تھی، شیطان سے چھڑا کے لے گیا تھا پہلی ٹوکری کو پھلوں کی. ہم ہی پھل ہیں. ہاللیلویہ. تو آپ کو مسیح کی ولادت کا دن بہت بہت زیادہ مبارک ہو. آج کا کلام آپ کی زندگی میں جڑ پکڑے، آپ کی زندگی میں پھل پیدا کرے، اور میرے عزیزو یہ کلام آپ کے لیے راہ نجات بنے، اور آپ اس کو ویپن کے طور پہ استعمال کریں، اور آپ اس کو ساتھ لے کر کے ایمان کی قوت کو محسوس کریں. میری یہ دعا ہے آپ کے لیے. انجوائے یور سیلف. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے. یہ کلام کے لیے خدا گاڈ بلیس یو. پریز گاڈ. ہاللیلویہ. تعریف ہو خدا کے.